Hello students, welcome to my class. Today now we study lesson 4 from your book Vistas, The Enemy. The author of this lesson is Pearl S. Burr. This is the lesson. This is the lesson set up at the time of Second World War, Japanese and American. An American prisoner of war get washed away to the doorstep of Japanese Dr. Sadao Hawkins. His choice is very hard for Dr. Sadao and his wife. Should they hand him over to the police or save him from dying? Being a doctor, Sadao gave top priority to save the life of a dying man. Not only does he save him but also help him in escaping to freedom. So this is the story of a time of when Japan and America both are enemy each other. दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे. And डॉक्टर सदाव जो कि एक जैपनीज हैं और जो उनके जो फादर थे वो चाहते थे कि डॉक्टर सदाव को पढ़ाएं, काफ़ी अच्छी हायर एजुकेशन दें और एक डॉक्टर, और इस तरह से उनका सपना भी पूरा हुआ. डॉक्टर सदाव अमेरिका गए, वहाँ से अब एक सर्जन अच्छी डिग्री लेके वहाँ पर लौटे. एक दिन जो अपनी वाइफ के साथ जब वो अपने रूम पर खड़े हुए थे बंगलों पर, तभी वो देखते हैं कि कुछ उनकी जो समुद्र था, जो शोर था, समुद्र में कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ बहता हुआ आ रहा है. एंड व्हेन ही रीच नियर टू हिम, जब उसके बिल्कुल नियर पहुंचते हैं, दे फाउंड दैट मैन वाज अमेरिकन, वाइट अमेरिकन. वो एक वाइट अमेरिकन था. नाउ ही वाज इन कंफ्यूज वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ही हैंड ओवर हिम टू द पुलिस, कि वो पुलिस को हैंड ओवर करते हैं उसको, क्योंकि ही वॉज अ एनिमी फॉर हिम, क्योंकि वो उनके लिए क्या था, एनिमी था. फिर सेकंड थॉट कम इन माइंड, और फिर दूसरा थॉट उनके इमीडिएटली माइंड में आता है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स, एक ह्यूमन बीइंग्स के नाते उसको वो ट्रीटमेंट करें फर्स्ट या उसको बचाएं. सो नाउ लेट्स बी स्टडी द स्टोरी इन डिटेल. Dr. Sadao Hawkins' house was built on the Japanese coast. His father never joked or played with him. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had sent him to America at 22 to learn of surgery and medicine. He had come back at 30 before his father died. He had seen Sadao become a famous surgeon and साइंटिस्ट. सो एज डॉक्टर सदाव हॉकिंस, जो उनका घर था, दैट वॉज बिल्ट ऑन द जैपनीज कोस्ट, जैपनीज का जो कोस्ट था वहाँ उनका घर बना हुआ था. हिज फादर बहुत ही सीरियस थे. ही नेवर लाइक टू क्रैक अ जोक एंड ही नेवर फ्रैंक विद सदाव. फ्रैंक जो कि सदाव के साथ कभी फ्रैंक नहीं थे. ही वॉज वेरी रिजर्व टाइप नेचर. सो his father, he was very concerned about the education of his son, so he sent his son Sadao to higher education, for higher education to America. When he come back, Sadao from America, now he become a famous surgeon as well as a scientist also. Sadao had met Hannah in America. He didn't fall in love with her until he was sure he was a Japanese. His father would never have accepted her unless she had been pure in her race. Sadao met her at the American professor house. They come from Japan. Their marriage had become arranged in old Japanese way. They were perfectly happy and had 2 children. When Sadao went to the America for higher education, and then he met a lady. The name of that lady is he met a lady there, and Hannah. And first of all, they never. First of all, he wanted to know that that lady was pure Japanese or an American. कि वो जो लेडी है ना,
कि अगर जैपनीज है एंड देन ही कैन मैरी विद हर। अगर वो एक जैपनीज है तब तो वो उसके साथ क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इफ शी वॉज अमेरिकन, अगर वो अमेरिकन है, हिज फादर नॉट अलाउड हिम, तो उसके जो फादर है वो कभी भी राजी नहीं होंगे कि उन दोनों की शादी हो जाए। एंड देन व्हेन सदाओ मेक श्योर, जब उनको पूरी तरह से अच्छे से पूरा विश्वास हो गया दैट हैना इज अ जैपनीज, एंड देन after completing completed his education, and then he married with Hannah, and after that they spent very happily life, and they also have 2 children also. Sadao and Hannah found sometimes something come out or out of the mist. A man seems to be on his hand and knees quietly. Then they saw him fall on his face and lie there. He was wounded and lay motionless on the sand. He was a white man. One day, Sadao and his wife was standing in his porch, and then he saw a man who was going in a, यानी एक आदमी को ऐसे रेंगता हुआ देखा कि वो पानी में रेंगता हुआ कुछ चीज आ रहा है। They saw him face, कभी उसका फेस ऐसा लगता था कि वो ऊपर है एंड देन डाउन, कभी ऊपर लगता था, कभी ऐसा लगता था उसका फेस नीचे हो रहा है। So when they both husband and wife reached near to him, जब उसके पास पहुंचते हैं and then they came to know that that was American enemy, and he was very badly wounded, बहुत बुरी तरह से घायल है। He was white man. He on the right side of his lower back. Sadao saw a gun bound and reopened. और सदाओ ने देखा कि उसके जो लोअर बैक है वहाँ पर एक गन का बहुत बड़ा, यानी उसको घाव हो रहा है, गन लगी हुई है। He was bleeding, और इस तरह से उसका वहाँ पर ब्लड बह रहा है। He packed the bound with the sea mosses. उन्होंने वहाँ पर कुछ भी नहीं था, इमीडिएटली वहाँ जो समुद्र के पास जो आसपास मॉस होती है, मॉस यानी वी कैन से काई, और उसको घाव पर उसको लगा देता है। The man cried but did not awaken. मैन चिल्लाया पर लेकिन जगह नहीं। They read the faint letter on the cap, US name. The American was Christmas war. उसकी कैप पर बहुत ही भद्दे हुए हल्के हल्के फेडेड वर्ड्स में लिखा हुआ था US नेवी। तो इससे उसको पता लग गया दैट वाज अ अमेरिकन प्रिजनर। If they shelter the white man in their house, they would be arrested. अगर वो उसको अपने घर पर अरेस्ट रहने के लिए अगर उसको देते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि उसको अपने घर रखते हैं, एंड देन जैपनीज पुलिस अरेस्टेड हिम, तो जैपनीज पुलिस उनको क्या कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी। बट दे टर्न हिम ओवर द प्रिजनर। अगर उसको एक प्रिजनर सोचते हैं कि हाँ एक प्रिजनर है, ही वुड सर्टनली डाई, तो डेफिनेटली वो मर जाएगा अगर उसको नहीं ध्यान देते हैं और छोड़ देते हैं कि चलो एक प्रिजनर है, हमें क्या करना है, एंड देन ही वाज डेड। सो द कपल वाज इन अ फिक्स, दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों कपल, जो कपल था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। ऑल अमेरिकन वर देयर एनिमीज, क्योंकि उनके लिए जितने भी अमेरिकन थे वो सब उनके लिए एनिमीज थे। इफ़ ही वर हेल्दी दे कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस। अगर वो सोचते हैं अगर ये फिट होता, फिजिकली फिट होता, एंड देन दे हैंड ओवर टू द पुलिस, वो उसको पुलिस के हैंड ओवर कर देते। बट ही वॉज बाउंडेड, ही वुड डाई अनलेस ही वॉज ऑपरेट ऑन। अगर उसको ऑपरेट नहीं किया गया, उसके बाउंड को ठीक नहीं किया गया, एंड देन ही वॉज डाइड, तो क्या होगा, वो मर जाएगा। एट एनी रेट समथिंग वॉज टू बी डन विद हिम। फिर लास्ट में दे डिसाइड, नहीं, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। द टू सर्वेंट्स वर फाइटिंग एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। और इस तरह से जो उनके जो मास्टर था, जो उनके सर्वेंट थे, वो ये देखते हैं कि अपने मास्टर को कि वो एनिमी की एक हेल्प कर रहे हैं, एंड नाउ दे वर फ्राइटेड, वो डर जाते हैं। दे थॉट देयर मास्टर शुड नॉट हील द बाउंड ऑफ द वाइट मैन। और वो सर्वेंट भी चाहते हैं कि उनका मास्टर
उस एनिमी के जो बाउंड है उसको बिल्कुल भी ठीक ना करें। इवन यूमी यूमी इज अ सर्वेंट रिफ्यूज टू वॉश, जैसे उसकी वाइफ बोलती है ना, कि यूमी को कि उसके बॉन्ड को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो एंड देन यूमी ऑल्सो रिफ्यूज टू क्लीन द बाउंड, और यूमी वो भी मना कर देती कि वो उसके बाउंड को क्लीन नहीं करेगी। एंड रिटर्न टू हर वर्क, अपने घर पर चली जाती है ना। हरसेल्फ वॉश्ड टॉम्स ब्रेस एंड फेस विद स्टीमिंग हॉट वाटर केयरफुली, और सदाओ की जो वाइफ है ना, वो खुद अपने आप उसके बाउंड को क्लीन करती है स्टीम से और उसको ले आती है। सदाओ आस्क्स है ना टू हेल्प हिम टू टर्न द मैन, शी obeyed. She was asked to give the anesthesia if needed. कहती है हाँ, अगर इसको कुछ एनेस्थीसिया चाहिए, मतलब हमें बेहोश करना है उसकी जो गोली को निकालने के लिए, एंड देन वी कैन डू। द ब्लड वॉज स्टिल देयर, क्योंकि ब्लड जो थी उसकी अभी भी ब्लड उसके अंदर थी, यानी गोली उसके घाव के अंदर फंसी हुई थी, उसको निकालने के लिए उसको बेहोश करना पड़ेगा। सो ही लॉस्ट मच ब्लड, काफ़ी खून निकल चुका था, हना कुड नॉट बियर द साइट एंड रन आउट द रूम। अब वो उस दृश्य को वो नहीं देख सकती थी क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी, एंड सो दैट इज वाई शी कम आउट इन हर रूम, और वो अपने रूम में वापस आ जाती है। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन इन हर लाइफ, उसने अपनी लाइफ में कभी भी ऑपरेशन नहीं देखा था। सदाओ वेंट ऑन विद हिज वर्क, और सदाओ अपना काम करता है, but he came out with a bottle and some cotton in his hand, and with a very clean and precious infusion the blood was taken out, और इस तरह से सदाओ उसको ऑपरेट करता है और ब्लड को बाहर निकालता है। The man quivered but was still unconscious, जो मैन था कांप रहा था पर लेकिन फिर भी अभी भी वो अनकॉन्शियस था, यानी बेहोश था। He only muttered a few words in English, और वो कुछ वर्ड था जो कि हर इंग्लिश में कुछ वर्ड मटर्ड कर रहा था, बड़बड़ा रहा था। डॉक्टर सदाओ declared that man would live in spite of all. The young man woke up, अब young man वो जग जाता है। He was very weak, और his blue eyes were terrified when he saw where he was. जब वो उठता है तब वो देखता है कि वो कहाँ पर है, तो वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। हैना कंसोल हिम नॉट टू बी अफ्रेड, हैना उसको समझाती है कि वो कंफ्यूज ना हो, डरे नहीं। शी कम्फर्ट हिम दैट शी वुड सून बी स्ट्रॉन्ग, और वो उसको कंफर्ट करती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। On the third day, Sadao examined the wound Tom asked that they were going to do with him. He looked barely 17. For a moment, Sadao did not answer. वो करीब मुश्किल से 17 साल का, करीब वो 17 years का करीब वो दिखता है। And Sadao did not answer. Sadao, for a moment, Tom was a prisoner, पर लेकिन टॉम क्या था, एक prisoner था, वॉर प्रिजनर था। ही शुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और उसको उसके हैंड ओवर करना पड़ेगा उसको पुलिस के। द सर्वेंट गेव डेली मोर वॉचफुल, सर्वेंट उसको डेली है ना बहुत ज़्यादा वो रहते थे, वॉचफुल रहते थे। सदाओ वांटेड द प्रिजनर टू गेट अप ऑन हिज फीट, सदाओ चाहता था कि प्रिजनर जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, चले। एज ही फील वेरी वीकनेस, he should practice every day till he gained strength, और डेली वो प्रैक्टिस करता था जब तक कि उसके अंदर एक ताकत नहीं आ जाती थी। The man thanked the doctor for having saved his life, और वो मैन वाइट विद उसके वाइट पर्सन जो था वो उसकी थैंक करता है कि उसने उसकी लाइफ को बचाया। The doctor continued him not to thank him so early. Sadao examined the wound केयरफुली एवरीबडी, वो कहता है अभी थैंक नहीं बोलो क्योंकि मुझे तुम्हारे घाव को अभी कंटिन्यू मुझे डेली अभी देखना है। यू आर नॉट फिट। द लास्ट
स्टेज हैड बीन पुल्ड आउट, और फिर लास्ट जो स्टेज था उसको भी उसने क्लियर किया। द यंग मैन वुड बी ऑल राइट विद इन अ फोर्टनाइट, और करीब 15 दिन के अंदर हुआ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Hannah was terrified but maintained her pride as a mistress. She paid them off and thanked them for all they had done for him. और उसने उसका बहुत थैंक किया, जो भी उसने उसके लिए किया था, दोनों सदाओं और उसकी जो वाइफ थी हैना ने उसकी जो हेल्प की थी। द ओल्ड जनरल वॉज सिक, ओल्ड जनरल था वो बीमार हो गया था। ही न्यू दैट सदाओ वॉज इंडिस्पेंसिबल टू हिम, वो जानता था कि बिना सदाओ के कोई भी काम नहीं चल सकता। ही डिड नॉट वांट सदाओ टू बी अरेस्टेड, और इसलिए जब उसको पता लगा सदाओ ने उसको ट्रीटमेंट किया है किसका, वाइट प्रिजनर का, पर लेकिन वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जो जनरल था वो मालूम है अगर उसको अरेस्ट करेगा तो उसका ट्रीटमेंट करने वाला कोई भी इतना अच्छा सर्जन नहीं है, दैट इज वाई वो उसको अरेस्ट नहीं करता। What would happen if he condemned to death and the next day he would have to be operation? अगर मान लीजिए उसने उसको डेथ पनिशमेंट दे दिया सदाओ को, तो दूसरे दिन उसका ऑपरेशन कौन करेगा? अगर मान लीजिए उसका ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो। क्यों? क्योंकि जनरल था, वो बहुत बीमार रहता था और उसे मालूम था कि और कोई सर्जन नहीं है सदाओ के अलावा। He did not trust other surgeon, और साथ में वो अदर जो सर्जन थे किसी के ऊपर बिलीव भी नहीं करता था। The general hit upon a plan. It would be best if the American could be quickly killed. उन्होंने बोला कि अच्छा है, सबसे अच्छा है कि उस अमेरिकन को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए, इसलिए उसके माइंड में एक प्लान आया। He had his own private assassin. He could send 2 of them his house at night, कि अपने 2 आदमियों को उसके घर पर भेजेगा सदाओ के घर पर रात में। एंड सदाओ एग्रीड दैट इट वुड बी वेरी नेचुरल, और सदाओ को ये लगेगा ये अपने आप ही एक नेचुरल हुआ है, अपने आप मरा है। सदाओ थॉट ओवर द जनरल प्लान, और जब सदाओ को पता लगता है जनरल का ये प्लान है उसके ऊपर सोचता है। द होल थिंग कुड गो आउट ऑफ हिज हैंड, अब उसको ऐसे लगता है सब कुछ उसके हाथ से सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द गेस्ट रूम, और वो अमेरिकन जो एनिमी था उसके रूम में जाता है। ही थॉट ऑफ पुटिंग हिज बोट टू द शोर, और उसने सोचा कि जो शोर है यानी जो किनारा, समुद्र के किनारे पर एक बोट रखता है उसके लिए, जिससे कि वो वहाँ से फ्री होकर उसको वहाँ से निकाल दे, जिससे कि वो बच जाए। साथ में ही पुट सम फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथ ऑल्सो। American might be able to roam on that little island not far from the coast. एक वहीं से थोड़ी सी दूरी पर जाके एक और कोस्ट था जहाँ पर वो जाके रह सकता है। Nobody lived on that island, और उस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता। He gave all necessary instruction to Tom. उसने टॉम को, जो अमेरिकन प्रिजनर था, उसको सारे नेसेसरी इंस्ट्रक्शन भी दिए। If his food run out before he got and Korean food, he could single him 2 flashes. अगर मान लीजिए उसका खाना वगैरह कुछ खत्म हो जाता है एंड देन वो फ्लैश लाइट कर सकता है, जिससे कि वो उसको प्रोवाइड कर देगा वहाँ। द यंग अमेरिकन shook Sadao hand warmly about the and walked down into the darkness of the garden, और गार्डन की तरफ से जो डार्कनेस है उसको वहाँ से निकाल देता है। सदाओ इन्फॉर्म द जनरल दैट द यंग मैन हैड एस्केप्ड। सदाओ इस तरह से जनरल को इन्फॉर्म करता है कि वो यंग प्रिजनर वहाँ से बचकर भाग गया है। द जनरल हैड प्रॉमिस सदाओ टू गेट हिम किल्ड, और जनरल ने उसको बोला था कि उसको मारने के लिए बोला था, बट ड्यू टू हिज ओन इलनेस, पर लेकिन सदाओ को मारने के लिए वो मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि सदाओ ही एक ऐसा सर्जन था जो कि वो उसका ट्रीटमेंट कर सकता था। सो ड्यू टू हिज own illness he forgets the respect of his promise. सदाओ got his reward, और इस तरह से सदाओ को रिवॉर्ड मिल जाता है। He did not receive any single
No one was on the island. The prisoner had gone safe. और इस तरह से prisoner बहुत ही safely से वहाँ से निकल जाता है. Sadayo remembered that he had a lot of difficulty in finding a place to live in America. सदायो को याद आता है जब पहली बार जब वो अमेरिका गया था स्टडी के लिए तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. डिफ़िकल्टीज की थी अपना प्लेस ढूंढने में, बिकॉज ही वॉज जैपनीज, क्योंकि वो एक वहाँ पर एक अननोन पर्सन था, एक जैपनीज था. द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रेजुडिस. अमेरिकन लोग जो है बहुत ही उनके साथ पक्षपात यानी भेदभाव ज़्यादा करते थे. वाइट पीपल वर रिपल्सिव. इट वॉज relieved to be openly at war with them at last. Then he remembered the hagged face of the prisoner. तब उसको उस prisoner का face याद आता है. White and repulsive stranger, he thought, I wonder why I could not kill him. फिर उसको याद आता है मुझे हैरानी हो रही है कि जब मैं वहाँ गया था तो मेरे साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, किस तरह से भेदभाव था. आज मैंने उसको यहाँ से फ्रीली छोड़ दिया और मैंने उसको क्यों नहीं किल किया, क्यों नहीं मारा, ऐसा मेरे अंदर क्यों हुआ. सो दिस इज़ द स्टोरी. आई नो यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू लाइक माई channel, so you subscribe, like, and you also write comment in comment box. Thank you. Have a nice day.